Hey everyone, welcome to Tech with Obi. This is Jasvi Bharadwaj and welcome back to my channel. In the last videos, we studied about encapsulation, inheritance, and other videos in your object-oriented programming series. If you have not watched them, I will recommend you to please go through them. Today's video is about polymorphism. So before any delay, let's start. This animal class, इस animal class में मैंने क्या किया एक तीन प्रॉपर्टीज दे दी किसी भी एनिमल को दिस नेम नंबर ऑफ लेग्स एंड हैज टेल अ बूलियन जो कि बताएगा इफ दैट एनिमल इज हैविंग टेल और नॉट ठीक है अब मैंने क्या किया एक कंस्ट्रक्टर बना दिया एनिमल का जिसमें आई एम टेकिंग नेम्स लेग्स एंड हैज टेल एंड आई एम जस्ट assigning the properties to the from the parameters given. So I hope this is you all are aware with this. Now we have these two methods, make sound and eat. Right now they are just printing the generic message. This is the default behavior of an animal. कि कोई भी animal है generic क्या होगा make sound में it is making a generic animal sound and eating में that animal is eating something, right? I hope this is clear till now. Now what I am doing आपने previous video में देखा होगा पढ़ा होगा about inheritance. Inheritance में क्या होता है कि आपका कोई भी चाइल्ड क्लास होगा कोई पेरेंट क्लास होगा चाइल्ड क्लास पेरेंट की सारी प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर लेगा यू कैन सी हेयर इन डॉग यहाँ पे अभी मैंने सिर्फ कंस्ट्रक्टर लिख रखा है एंड सेम गोज विद कैट एज वेल यहाँ पे मैंने सिर्फ कंस्ट्रक्टर लिख रखा है इसका मतलब कि क्योंकि मैंने एक्सटेंड किया है एनिमल से इस डॉग और इस कैट के पास ये सारी प्रॉपर्टीज आ चुकी होंगी right now they have all the properties of the animal that is name legs has tail and they have these methods as well make sound and eat what will let's try to create an object of type dog let's see dog equals to new dog and let's say I am giving name Shiro. It is having four legs and let's try to make dog ka true. Has tail as true. Let's try to dog dot make some. Let me compile this. Okay. Oh, so there was a typo. Let me compile this and let me run this. So you are seeing that Shiro is making a generic animal sound. This is where polymorphism come into picture. What is happening? I want my dog to say woo or to bark and my cat to meow instead of making the generic sound. मतलब मेरे पास डॉग है मेरे पास कैट है आई डोंट वांट कि वो जेनेरिक साउंड बनाए इंस्टेड आई वांट कि उनकी एक खुद की प्रॉपर्टी है उनकी एक खुद का एक साउंड होता है हम उसको रिप्रेजेंट करें मेक साउंड राइट सो व्हाट आई कैन डू इज यहाँ पे आई कैन यूज अ वर्ड ओवरराइड एंड आई कैन कॉपी दिस पेरेंट के फंक्शन को मैं यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर दूं और सब कुछ सेम रहेगा बस इसके इम्प्लीमेंटेशन में आई कैन डू चेंज and same goes with cat as well. अब यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ कि मेरा एनिमल की एक मेथड था मेक साउंड वाज मेकिंग अ जेनेरिक एनिमल साउंड बट मेरे डॉग और मेरी एक कैट की खुद की एक साउंड की प्रॉपर्टी होती है जो कि डिफरेंट होती है जेनेरिक साउंड नहीं होता है उनका तो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन ओवरराइड द पेरेंट्स मेथड आई कैन इम्प्लीमेंट वॉट एवर आई वॉन्ट एंड दैट अब डॉग के ऑब्जेक्ट जितने भी होंगे वेन एवर आई कॉल मेक साउंड डॉग के ऑब्जेक्ट का ये वाला मेथड विल गेट कॉल्ड आई होप दिस इज क्लियर यहाँ पे मैंने सेम किया है विद कैट एज वेल अब let's try to again compile and again check this. You can see here Shiro is barking क्योंकि मेरे को पता है कि मेरा डॉग is barking. I don't want to make it generic. That's why यहाँ पे मैंने override कर दिया. Right? I hope this is clear. Now this is called method overriding. Why method overriding means कि हम लोग पेरेंट का एक मेथड था make sound और eat. We are overriding in our child class. यहाँ पे I am not changing the name of the method that is getting called. I am just changing the implementation inside it. I hope this is clear. Many people call this method overriding as runtime polymorphism. Let's try to understand why we call it a runtime. आपने देखा होगा यहाँ पे we are making a dog का object. ठीक है अगर मैं इसको animal बना दूं animal dog 1 equals to new dog and call it pogo. यहाँ पे अगर मैं dog 1 dot make sound करूंगी and let's try to compile and run you are seeing that pogo is barking यहाँ पे जेनेरिक साउंड ना होके अगेन यहाँ पे बार्किंग वाला ही आ रहा है वाई भले ही आपने देखा होगा यहाँ पे हमने एनिमल लिया बट स्टिल मेरा ऑब्जेक्ट इज ऑफ डॉग टाइप राइट तो रन टाइम पे डिसाइड होता है कि आपका ऑब्जेक्ट किस क्लास को बिलोंग करता है और उसी क्लास के मतलब इफ देयर इज अ ओवरराइडिंग तो इसी हिसाब से वो वाला मेथड विल गेट कॉल इसीलिए रन टाइम बोलते हैं क्योंकि रन टाइम पे डिसाइड होता है कि आपका कौन सा ऑब्जेक्ट है और उसके किस मेथड को हमें कॉल करना है राइट आई होप दिस इज क्लियर दिस इज कॉल्ड मेथड ओवरराइडिंग. Now that you understood about method overriding,
there is another concept in polymorphism itself, that is method overloading. As you know, polymorphism मैंने बताया, it means many forms, right? तो अब एक फंक्शन का आपने मेनी फॉर्म्स तो देख लिया, हम लोग ओवरराइड के थ्रू कर रहे थे, जो कि हर चाइल्ड के पास अपना ही एक इंप्लीमेंटेशन हो रहा था. देयर इज अनदर वे जहाँ पे एक ही फंक्शन डिफरेंट वेराइटीज शो कर सकता है, दैट इज बाय मेथड ओवरलोडिंग, राइट? इसमें क्या होता है, मेथड नेम सेम होता है बट वी ट्राई टू चेंज द पैरामीटर्स. अब पैरामीटर्स कैन बी डिफरेंट ऑन टू बेसिस. पहला क्या कर सकते हो आप कि नंबर ऑफ पैरामीटर्स ही चेंज कर दो. किसी फंक्शन मेथड में 2 पैरामीटर भेजो, किसी में 3 भेजो और 4 भेजो अपने इंप्लीमेंटेशन के हिसाब से. दूसरा, नंबर ऑफ पैरामीटर्स सेम है बट वी आर चेंजिंग द डेटा टाइप ऑफ दैट पैरामीटर, राइट? तो इस तरीके से आप एक ही मेथड को ओवरलोड करते हो अलग अलग तरीके से. इसे हम कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म भी कहते हैं. व्हाई? क्योंकि कंपाइल टाइम पे ही देख लेता है कि ये मतलब कितने पैरामीटर्स हैं या कौन सा डेटा टाइप ऑफ द पैरामीटर है, तो उसी हिसाब से उसी फंक्शन को वो रेफर कर देता है, राइट? आई होप दिस इज क्लियर. लेट्स ट्राई टू जंप इन ओवर हियर एंड चेक. आपने देखा होगा मैंने एक कैलकुलेटर क्लास बनाई है. एक ही मेथड है ऐड, उसी मेथड के डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज वी हैव इन आवर कैलकुलेटर क्लास. ठीक है, जैसे आपने पहले देखा कि एक ऐड मेथड है जिसमें वी आर एडिंग टू नंबर्स. दूसरा ऐड मेथड है जिसपे वी आर एडिंग 3 नंबर्स, 3 इंटीजर्स. एक और ऐड मेथड का ही वेरिएशन है जिसमें हम डबल ले रहे हैं, डेटा टाइप इज नॉट इंट, इंस्टेड डेटा टाइप इज डबल, और हम डबल में ही रिटर्न कर देंगे. एंड सेम गोज विद हाँ, अब आप फोर्थ देखोगे कि यहाँ पे ऐड है, यहाँ पे एक इंट है और एक डबल है. ठीक है. सिमिलरली वी हैव दिस प्रिंटर फंक्शन जहाँ पे आप सिर्फ पहले तो एक ही वैल्यू प्रिंट कर रहे हो. दूसरे मेथड में भी यू आर प्रिंटिंग अ सिंगल वैल्यू ओनली, बट पहले के केस में आपका इंटीजर प्रिंट हो रहा था, दूसरे केस में आपका स्ट्रिंग प्रिंट हो रहा था. एंड इन थर्ड केस इट इज प्रिंटिंग बूलियन. फोर्थ में मैंने बस नंबर ऑफ पैरामीटर्स चेंज कर दिया एंड उसी हिसाब से मैंने अपना फंक्शन का इंप्लीमेंटेशन लिख दिया. अब अगर आप देखो यहाँ पे, अगर हम शुरू करें लिखना कैल सी डॉट ऐड करें 5,15, अगर मैं ये करूं तो अपने हिसाब से आप सोच के बताना कि इन चारों में से कौन सा कॉल होगा. आपको पता है कि दोनों ही 5 और 15 इंट है, तो आपका ये वाला कॉल हो जाएगा, राइट? लेट्स ट्राई टू कंपाइल एंड रन एक बार. सो इट शुड बी, लेट मी गो विद द कमांड्स. लेट्स ट्राई टू रन इट. आपने देखा ऐड इंट कॉमा इंट इज गेटिंग कॉल. यहाँ पे हम प्रिंट नहीं कर रहे हैं, वी कैन यहाँ पे प्रिंट एज अ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन और सिंपली प्रिंट. लेट्स ट्राई टू कंपाइल एंड लेट्स ट्राई टू रन. आपने देखा कि ऐड इंट कॉल्ड हुआ और 5 + 15 20 हमें रिटर्न हो गया, जो कि हमने यहाँ पे प्रिंट कर दिया. आपने देखा कि पैरामीटर कौन सा है उसी के हिसाब से वो वाला फंक्शन कॉल हो जा रहा है या वो वाला मेथड कॉल हो रहा है. नाउ लेट्स ट्राई टू कॉल अनदर फंक्शन. ऐड फंक्शन ही कॉल करेंगे बट उसके पैरामीटर्स को थोड़ा सा डिफरेंटली भेजते हैं. तो लेट्स सी. सॉरी, इट शुड बी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एंड लेट मी कॉपी दिस. अब इन दिस केस इवन दो आई एम सेंडिंग 5, बट इसको मैं इंटीजर की जगह स्ट्रिंग फॉर्मेट में भेज रही हूँ, तो इसका मतलब ये ऐड का वो वाला मेथड ढूंढने की कोशिश करेगा जिसमें पहला इंट स्ट्रिंग हो और दूसरा इंटीजर हो. क्या आपको दिख रहा है यहाँ पे स्ट्रिंग कॉमा इंटीजर? नो, हमें नहीं दिख रहा है, राइट? सो लेट्स ट्राई टू कंपाइल एंड सी कि क्या एरर आता है. अगर आप देखें तो यू कैन सी कि एरर नो सूटेबल मेथड फाउंड फॉर ऐड स्ट्रिंग कॉमा इंटीजर. तो आपको मिल गया यहाँ पे कंपाइलेशन के समय ही आपको एरर मिल गया, आपको रन टाइम का वेट नहीं करना पड़ा, राइट? इसीलिए हम मेथड ओवरलोडिंग को कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं कि कंपाइल टाइम पे ही डिसाइड होता है कि हमें कौन सा मेथड को कॉल करना है. I hope this is clear to you all. All the very best.